મોક્ષ રૂપમાં એ પ્રાપ્ત થઈ ગયા. तीसरा श्लोक का शुरुआत करिए आप. सब में जाएगा, सब में जाएगा. नहीं तो लक्षण कैसे जाएंगे, वो लक्षण कैसे बैठेगा? मात्र इंद्रिय दिया इत्यादि वो सब सबरे लक्षण कैसे जाएगा पंडित? इसलिए और ज्यादा समझ आए कि नहीं, पर श्री महाप्रभु का आग्रह देवतावाद में है, ये बात हमारे बिल्कुल फिट होनी चाहिए. अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्य साधन संयुताः लौकिका ऋषिभिः प्रोक्ता तथैवेश्वर शिक्षया. अब इसमें से पढ़ लीजिए आप, क्योंकि अपने 2 श्लोक क्लियर हो गए. अलौकिकास्तु वेदोक्ताः साध्य साधन संयुताः. सान्वય પદાર્થ સાધ્ય સાધન સંયુતાः એટલે સાધ્ય એટલે યજ્ઞાદિક અને શ્રુક શ્રુવાદિક સાધનોએ કરીને સંયુક્ત એવા. એક બિલકુલ રાઉન્ડ શેપનું એક લાકડાનું એ હોય છે એક પાત્ર, અને એક પાત્ર મોટા મોડાનું આ રીતે હોય છે. એવા 2 પાત્રો હોય છે. એમાં એ બંનેને શ્રુક અને શ્રુવા કહેવાય છે. જેનાથી હવન કરતા હોય છે ને, બ્રાહ્મણો કરતા હોય છે અથવા તો આપણને કરાવતા હોય છે. એમાં 2 પાત્ર હોય છે એ વખતે લાકડીના. એ બંને પાત્રોનું નામ શ્રુક અને શ્રુવા છે. खाली આપણને ધ્યાન રહે એટલા પૂરતું કહું છું. अलौकिकाः श्रुक और श्रोवा में भी वहां मूर्ति रूपता है प्रकृति और पुरुष की. चल, अलौकिकाः अलौकिक એટલે કે ઈશ્વર વિચારિત પુરુષાર્થો તું એટલે તો વેદોક્તાः વેદમાં કહેલા છે. અને શબ્દાર્થ જે અલૌકિક પુરુષાર્થો છે એ તો વેદમાં કહી જ દીધેલા છે. અલૌકિક એટલા માટે કે એ પ્રભુએ કહ્યા છે. વેદમાં જેટલી વાણી છે વેદની એ શ્રી પ્રભુની વાણી છે. એ માટે વેદમાં જે કહેલા પુરુષાર્થો છે એ પુરુષાર્થો અલૌકિક છે. અને તેથી જ લૌકિક ઋષિઓએ કહેલા પુરુષાર્થ વ્યવસ્થામાં પણ પુરુષાર્થ રૂપતા ત્યારે આવશે કે ભલે વેદમાં કહેલા પુરુષાર્થો આજે ફિઝિબલ એટલે એમને ક્રિયાઓથી આપણે ન કરી શકતા હોઈએ યજ્ઞ રૂપમાં. વેદમાં જે ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષના જે રૂપ બતાવ્યા છે તે રીતે આજે તે ક્રિયાઓને તે ચેષ્ટાઓને કરવી શક્ય છે જ નહીં. કેમ કે આજે દેશકાલ ઇત્યાદિ કાંઈ સહાયભૂત નથી આપણને. તેથી ભલે એ ક્રિયારૂપમાં તે આચરણ વેદમાં કહેવાયેલું તે આચરણ ન શક્ય હોય તો પણ તે ધર્મ અર્થ કામનો જે મૂળ આશય છે એ આશય ગ્રહણ કર્યા વગર જે પણ ઋષિ ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષની વ્યવસ્થા બતાવશે એ ખરેખર પુરુષાર્થ વ્યવસ્થા નહીં કહેવાય. એમાં આટલું સમજી લે. મારી વાતને સમજો, નહીં તો શું થશે કે વેદમાં ભગવાને જે પોતાના વચનથી ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષની વ્યવસ્થા આપી છે એ ક્રિયામાં સંભવ નથી, પણ એનો મૂળ એમાં દરેક ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષમાં રહેલો આશય એનો મૂળ સાર એ સાર જો આપણા ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષમાં નહીં આવે તો પુષ્ટિ માર્ગના પણ ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ પુરુષાર્થ નહીં કહેવાય. હું રિલેશન જોડી રહ્યો છું, બતાવી રહ્યો છું કે યાદ રાખજો તમારો ધર્મ ભગવાન છે, પોતે તમારો અર્થ આપણો અર્થ ભગવાન છે, આપણો કામ ભગવાન છે ને આપણો મોક્ષ ભગવાન છે. ભલે તે વખતે યજ્ઞ યાગાદિકનો જ્યારે યુગ હતો એ સતયુગથી લઈને અને આજે કલયુગ સુધી કે દ્વાપર કે ત્રેતા સુધી, અસલમાં દ્વાપરમાં ત્રેતા સુધી જે વ્યવસ્થા રહી, દ્વાપરમાં એ વ્યવસ્થા પછી બગડી ગઈ. અસલમાં દ્વાપર સુધી પણ જે યજ્ઞ રૂપતા હતી એ યજ્ઞ રૂપતાનો મૂળ આશય તો યજ્ઞરૂપી ધર્મથી મૂળ કૃષ્ણનો હતો, યજ્ઞરૂપી અર્થથી મૂળ
આશય કૃષ્ણનો હતો, યજ્ઞરૂપી કામથી મૂળ આશય કૃષ્ણમાં હતો, યજ્ઞરૂપી મોક્ષથી મૂળ આશય કૃષ્ણમાં હતો. તેથી આજે પણ સેવારૂપી ધર્મથી આપણો આશય કૃષ્ણમાં છે, સેવારૂપી અર્થથી આપણો આશય કૃષ્ણમાં છે, સેવારૂપી કામથી આપણો આશય કૃષ્ણમાં છે, સેવારૂપી મોક્ષથી આપણો આશય કૃષ્ણમાં છે. મારી મહેનતને થોડીક સફળ કરજો. આપણામાં પુષ્ટિ માર્ગના પણ ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ એટલા માટે પુરુષાર્થ કહેવાઈ રહ્યા છે કેમ કે શ્રી મહાપ્રભુએ બતાવેલા પુષ્ટિ માર્ગનો અને વેદનો મૂળ આશય બંનેનો એક જ છે, એમાં કોઈ ભેદ નથી. તેથી વેદમાં કહેવાયેલા ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષનો મૂળ આશય લીધા વગર, સ્વીકાર્યા વગર જે કોઈ પણ ઋષિ મહર્ષિ અને મહાપુરુષોએ પણ વ્યવસ્થા ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષની આપેલી હોય તો પણ એ ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ માત્ર ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ કહેવાશે, એ પુરુષાર્થ નહીં બને જો એમાં મૂળ વેદનો આશય નહીં આવે તો. અને તેથી શ્રી મહાપ્રભુએ ઋષિઓના બતાવેલા લૌકિક ધર્મ અર્થ કામ મોક્ષ પણ આગળ જે આપણને સમજાવ્યા છે એનો મૂળ આધાર વેદનો આશય છે. અને તેથી શ્રી મહાપ્રભુ એટલા અંશમાં એ પુરુષાર્થોને સ્વીકારે છે અને એની સ્વતઃ અને પરતઃ મોક્ષ કરીને બે વ્યવસ્થા આપે છે, જે હું કાલે સમજાવીશ.
સાહિત્ય પશ્ચિમમાં ક્યારેક તમારે જ આપી દેવું પડશે કોઈક દિવસે. થોડા દિવસ થોડા મહિના રાખશો પછી એમ થશે કે આને શું કરવું, પશ્ચિમ આપી દેશો. તો ન લો. કાલે મૈયાએ પણ આજ્ઞા કરી. આ બાબતમાં તમને ખબર હોય તો ઘનશ્યામજી બધાને આપો છો. મેં કહ્યું કે હા, અને પછી થયું કે ના. બંનેનું કારણ હતું કે હું હજી મને ખબર છે કે અહીં બેઠેલા બધા આ ચાર્ટ સમજવા સક્ષમ નથી, છતાં બધા પાસે આ ચાર્ટ છે. પ્લીઝ જરા સાંભળો. તો જે ચાર્ટ આપને આજે કે કાલે સમજાવી શક્યતા ના હોય, भार देवतावाद पे कितनो ज्यादा है, थोड़ा समझने को प्रयास करियो. मैं बहुत ज्यादा समय नहीं देना चाह रहा हूं क्योंकि जो विषय अपन को निर्देश करना है वो निर्देश कर चुके हूं. बाकी विस्तार को कहीं कोई अपने यहां अंत नहीं है. लेकिन श्री महाप्रभु की याद दृष्टि को समझने को अपना दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट रहना चाहिए. देखो, श्री महाप्रभु जो यथार्थ सत्य है या सत्य के तीन आयाम में त्रिविध प्रकार से श्री महाप्रभु या को देख रहे हैं. जो वास्तविकता है वाको सबसे पहलो जो वाको मौलिक स्वरूप है वो आदिदैविक है. दूसरा वाको आध्यात्मिक है. और जो हम अपने अस्मदादि इंद्रियों से देख रहे हैं क्या है. अब अनफॉर्चुनेटली जो भी अपन सीमा माने, गौरिया की सीमा माने तो उनकी संस्कृति की सीमा माने या उनकी भाषा की सीमा माने, पर उनकी एक सीमा ये है कि वो अंतःकरण की 4 फोल्ड 4 फोल्ड बता नहीं पाए. और बताना भी हो तो उनके पास शब्द एक ही है, माइंड. उनके पास अंतःकरण जैसे विभाजन कहीं नहीं. दया के पात्र विचार. तो अंतःकरण स्वयं अपने आप में एक तरीका से वो भौतिक इंद्रिय नहीं है. वो यानी कि कुछ स्थूल इंद्रिय कह रहे हैं जैसे अपने कर्म इंद्रिय, ऐसी इंद्रिय
चाहिए। और अब या तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा बनाने के लिए एक बात और जो फाइनल कहना चाहूंगा समझो तो, देखो पहले मेरा उदाहरण समझो। आजकल ड्रामा देखने को शौक कम हो गया है। अगर तुम में से कोई लोग स्टेज के पसंद करने वाले हो तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, क्योंकि मैं स्टेज को पसंद करने वाला हूँ। वो कुछ सेल्यूलाइट में या पिक्चर में इतना मजा नहीं आवे जितना ड्रामा में। तो एक रुचि हो तुम्हारे गुजराती को और भी अच्छे शब्द रस पड़े છે। तो देखो स्टेज पे जो कुछ हो रहा है या फॉर एग्जाम्पल फिल्म में जो कुछ चल रहा है स्क्रीन पे, अब वो ये समझाओ कि जो भी घटना चक्र वहां चल रहे हैं इन रियलिटी का कुछ लेन देन है नहीं। फिर तुम्हारे ऊपर बाकी ये प्रतिभाव क्यों पड़ रहे हैं? तुम्हारी ऐसी इच्छा क्यों है कि जब विलेन को पीटे जा रहे तो दो चार मौका तुम्हारी तरफ से पीटे दिए जाए? तुम्हारा हार्दिक मनोरथ हुआ है एक पे आप पे फैट मार दीजिए। चलिए रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, पर हमारे ત્યાં બહુ પહેલા અમે અત્યારે તો 15-20 વર્ષથી મારો સંપર્ક નથી રહ્યો, 15 વર્ષથી, પણ વૈષ્ણવના એ દીકરા હતા, એ પોતે પણ વૈષ્ણવ છે, મારી સાથે એમનો સારો પ્રેમ હતો। એટલે ખાસ કરીને ગાડી લઈને મારી પાસે આવતા, એ વખતે ગાડી નહીં મારી પાસે, એટલે ગાડી લઈને આવે અને એમની ગાડીને ડ્રાઇવિંગને હું માઇક્રો ડ્રાઇવિંગ કહેતો। આપણને આંખ વેચી લેવાની ઈચ્છા થઈ જાય કે હવે ગયું, પણ એ એટલા यानी फ्रैक्शन ऑफ सेंटीमीटर ना मार्जिन થી ગાડી કાઢી નાખે, બિલકુલ સહી। એટલે એમની ગાડી ડ્રાઇવિંગને હું માઇક્રો ડ્રાઇવિંગ કહેતો। અને એમને ખાસ એક શોખ, ગમે ત્યાં સમજો કે આપણે જઈ રહ્યા છીએ રોડ ઉપર, ગમે ત્યાં કોઈ પણ જગ્યાએ સમજો બે માણસનો ઝઘડો થાય એટલે 100% ગાડી ત્યાં રોકવાની, સાથે કોણ છે કોણ એની પરવા નહીં, રોકી તરત જ ઉતારવાની। પેલું તમારા ખાસ ગુજરાતી ટોનમાં પેલા બે ત્રણ અલંકાર પહેલા નીકળે એમના મોઢેથી, ખાસ ગુજરાતી ટોનમાં એ ટોન મને બહુ ગમતો, એક સમજે રીતે ટોન આવતો અને પછી જઈને સમજ્યા વગર કે શું છે પણ જેનામાં માર પડતી હોય એને જઈને બે ચાર ઠોકી। હું તમને મારા અનુભવની વાત સાથે કહી રહ્યો છું, એમાં એ હું જરાય ડ્રામેટાઇઝ નથી અને બહુ કૂલ હેડેડ કે જે બે ચાર અલંકાર નીકળ્યા હોય એના કારણે કંઈક તો અસર હોય, પણ એમના ઉપર 2 મિનિટમાં પાછા આવીને ડ્રાઇવિંગ ઉપર બેસી અને આ મારી સાથે અમદાવાદમાં જ બન્યું, એ અમદાવાદમાં જ આવતા। એટલે આ એક વિલક્ષણ મને એક એમના સ્વભાવમાં ગમે ત્યાં નો કે माया जाल खड़ो कर सके, ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल वो सीन बना के खड़ो कर देंगे, दृश्य बना के खड़ो कर देंगे और उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। उनके पास अगर सबसे तगड़ा मैकेनिज्म है तो वो है अत्यंत प्रबल और सशक्त अभिनय को। अभिनय और स्टेज क्राफ्ट, स्टेज को कैसे सेट करना, वो स्टेज क्राफ्ट और अभिनय के बल पे वहां जो कुछ भी हो रहा है, बगीचा नहीं है लेकिन तुम्हारी अनुभूति में बगीचा आ रहे हो, क्योंकि वो वर्णन करके एक्टिंग करके अपने अभिनय से तुमको बता रहे हो और सारे फूलन की फुलवाड़ी तुम्हारे सामने खड़ी कर दी, वहां नदी की शीतलता तुम्हारे सामने खड़ी कर दी, इतने सशक्त अभिनय चल रहे हैं। अब ये जो चीजें हैं, जो चीजें यहां कहीं भी नहीं है लेकिन तुमको वो सारी अनुभूति कराई, तो अभिनेता, और वो अभिनेता कौन को अभिनय कर रहे हो, समझो कि वो अभिनेता राम को, श्री राम को अभिनय कर रहे हो, तो राम जो है वो अनुकार्य कहे गए। अनुकार्य शब्द थोड़ा याद रखियो मेरी दृष्टि से। और अनुकर्ता कौन है? राम को अभिनय कौन कर रहे हो? एक्टर। अब राम को जो अनुकार्य श्री राम है, उनकी जो एक्टिंग करने वाला अनुकर्ता जो एक्टर है, हाल में कहीं भाई जो आज हमको आंखन से प्रत्यक्ष नहीं है, वह वक्त की सारी जो परिस्थिति है वो परिस्थितियां हमारे सामने नहीं है। तो
ज्ञान होते भय भी, इतना सारा इनडायरेक्ट होते भय भी, वो जो अभिनेता है वो अपन को जो अनुभूति करा रहे हो, वो अनुभूति डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? डायरेक्ट है। वो अनुभूति हमको हो रही है, वो कोई दूसरे को नहीं हो रही है। तो वो जो अनुभूति कराने को सामर्थ्य है, वाकु अपने अपने रसशास्त्र में, अलंकार शास्त्र में साधारणीकरण की एक प्रक्रिया मानी गई है। लिख लो, वाकु लिखना है तो साधारणीकरण। और एकदम व्यवस्थित एने एक सूत्र में बेसाड़ी देवानी एक प्रक्रिया તમને તમારા અંદર કંઈક ઊંડાણમાં કંઈક એને સ્થાન આપવું પડશે, જગ્યા આપવી પડશે કે જે પ્રક્રિયાથી તમે એક એવી સમજ વિકસિત કરો કે જેમાં તમે આદિ દૈવિક અને આદિ ભૌતિકમાં આ જે તમે કમ્પાર્ટમેન્ટલાઇઝેશન ઉભા કરી રાખ્યા છે, આ દિવાલોને કે આ પડદાઓને હટાવી અને તેથી સાધારણીકરણ જ્યારે તમારો ખરેખર ઘટિત થશે ત્યારે એ સેવા ખરેખર સાચા અર્થમાં આદિ દૈવિક સેવા થશે। आदि भौतिक तुम्हारो जो भरो भयो झाड़ी झाड़ी में जल है, जाको मेटल तुम्हारो चांदी को आदि भौतिक है, जाको हरने वाले हाथ हाड़ मांस के आदि भौतिक है। ये सारी जो पूरी परिस्थिति झाड़ी भरने की और श्री प्रभु को सामग्री अरोगाने की और सेवा की जो चल रही है, ये आदि दैविक कृष्ण याकू कैसे स्वीकार लेंगे अगर आदि भौतिक आदि दैविक कृष्ण को ही स्वरूप न हो तो? आदि भौतिक में सर्वत्र आध्यात्मिक व्याप्त है और वह आध्यात्मिक में सर्वत्र आदि दैविक व्याप्त है। और ये सर्वत्र आदि दैविक व्याप्त होने को मतलब ही है श्रुति में सहस्र शीर्षा पुरुष। सहस्र शीर्षा की बात तो छोड़ दो, एक 4 माथे को 5 माथे को आदमी तो देखो, वाकु देख के कोटि के अंदर पर लावण्य में कौन कह देगा, वाकु कुरूप वाकु देख के तुमको भीति रोमांच खड़े हो जाएंगे, डर जाओगे। तो एक 2 माथे जुड़े हुए तो देखो अंदर वो सर्वत्र कहीं सीमा नहीं है वाकई श्रीमस्तक की और चरणारविंद के उपस्थित होने की, क्योंकि सर्वत्र वो व्याप्त है। यहाँ पे बहुत ज्यादा मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, नहीं तो बहुत कुछ कहा जा सके समझाने के लिए, पर मेरी बात समझियो कि जहां जो कुछ भी आदि भौतिक है वह सब में आध्यात्म व्याप्त हो रहे हो। बिना आध्यात्म के आदि दैविक आदि भौतिक टिक नहीं सके, और बिना आदि दैविक के आध्यात्मिक सामर्थ्य कहीं आ नहीं सके। देयरफॉर समझने को प्रयास करियो कि जितनो भी जागतिक तंत्र है अनंत कोटि ब्रह्मांड को, वहां में जितनी भी सामर्थ्य काम कर रही हैं, जिनको तुम फिजिकल फोर्सेस कह रहे हो, अंततो गत्वा वो सारी तमाम अनगिनत अगणित काउंटलेस वो जितनी भी प्राकृतिक जो शक्तियां हैं, सामर्थ्य हैं, जो नेचुरल फोर्सेस हैं, अंततो गत्वा वो सभी की सभी देवताएं हैं। ये महाप्रभु को देवतावाद, वो सब देवता है, क्योंकि उन सारी सामर्थ्य के शक्ति इनके आदि भौतिक रूप हैं, आध्यात्मिक रूप हैं और आदि दैविक रूप। और आदि दैविक रूप होने के कारण वो सब की सब देवताएं कही जाए। थोड़ा आधुनिक तरीका से समझाया है, पर मैंने शास्त्र की बात को समझाने को प्रयास किया है। 2 बातों को ध्यान रखियो, कोई भी कहीं भी कोई भी तत्व, कोई भी सामर्थ्य, जहां भी श्री प्रभु के सामर्थ्य को संकेत हो रहे हो, वो अंततो गत्वा वाको भी एक साकार रूप है, आदि दैविकता है वाकी। और या लिए दशम स्कंद को तुमको स्मरण कराऊं, अगर कोई को स्मरण हो तो दशम स्कंद के लक्षण में, निरोध के लक्षण में श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत को जो लक्षण, श्रीमद् भागवत के ही शब्दन को जब श्री महाप्रभु ने बताया है, तो वहां पर सार श्री महाप्रभु कह रहे हैं कि जब अपनी स्वयं की व्यक्तिगत सामर्थ्य के शक्ति के संग भगवान विराज जाएं रमण करने के लिए, वहां का नाम है निरोध। और वो जो शक्ति या सामर्थ्य है
उन सारी शक्ति और सामर्थ्य को वहां जो विद्वान भाष्यकार हैं, जो विद्वान वहां के टीकाकार हैं, वहां की विवेचनाकार, वो सब ये कह रहे हैं कि ये सामर्थ्य और कुछ नहीं है, ये समस्त अंतरंग भक्त हैं। वो अंतरंग भक्तन के संग जो पूर्ण पुरुषोत्तम लोक वेदातीत अविहित क्रीड़ा करने वालों जो श्री कृष्ण हैं, वो कौन के संग बैठे है? भागवत आज्ञा कर रही है परोक्षवाद सु, श्रीमद् भागवत कह रहे हैं कि ये अपनी शक्ति के संग शयन कर रहे हैं। भगवान शयन यानी स्थिति, टिकनो, अपनी शक्ति के संग भगवान यहाँ शयन कर रहे हैं, स्थित हैं यहाँ। श्री महाप्रभु और को आशय और अन्य सारे टीकाकार ये बता रहे हैं कि ये शक्तियां कोई और अन्य नहीं है, ये साकार नख शिख विराजे भय अंतरंग भक्त हैं संग। तो जिनको शक्ति कहे जा रहे हो भागवत के रूप में, शक्ति शब्द आध्यात्मिक क्षेत्र को नोट करियो, याद रखियो और यह बात पे गौर करियो, ध्यान दीजिए। शक्ति या सामर्थ्य शब्द जो है, क्योंकि शक्ति जो है वो इम्परसेप्टिबल होवे, वो अज्ञेय है, वो इंद्रियातीत है, वो इंद्रिय में समझ में नहीं आ सके। एनर्जी जो है, एनर्जी इज इम्परसेप्टिबल, वो इंद्रिय में, तुमको इंद्रिय सुबह को ज्ञान नहीं होगा सामर्थ्य एनर्जी को। तो जो शक्ति है, एनर्जी इज एग्जैक्टली नॉट शक्ति। एनर्जी में समझाने के लिए भौतिक शब्द यूज कर रहे हूं। तो जो शक्ति है वो आध्यात्म के क्षेत्र को शब्द है। तो शक्ति को मतलब है यहां आध्यात्मिक जो शब्द सु श्रीमद् भागवत अपन को निर्देश करके बता रही है कि ये शक्तियां हैं, उन्हीं को हम जब आधिदैविक दृष्टि से देखेंगे तो वो सब नखशिख भक्त बन जाएंगे। या लिए ध्यान रखियो या बात को कि श्री महाप्रभु को देवतावाद कितनो प्रबल है और वाकई क्या अर्थ है, क्योंकि वाकई 3 डिमेंशनल अर्थ जाएंगे, वाकई आदि भौतिक जाएंगे। जैसे एक बहुत बड़ा तूफान आया, अपन सौभाग्यशाली है कि अपन भारतवर्ष में है, इतने बड़े तूफान नहीं आवे। ये सुनामी जैसे तो एक हल्ला हो गया, थोड़े से यूनाइटेड स्टेट्स में जाओ और वहां एक 2-4-6 महीना व्यतीत करो, टोर्नाडो वह भूमि को एक स्वभाव है कुछ, और ऐसे टोर्नाडो आवे कि जो लैंडस्केप को साफ कर जाए। वो टोर्नाडो जो है ना, वही इंद्र को आदि भौतिक रूप है, वह इंद्र के वज्र को वही आदि भौतिक रूप है। इन आदि भौतिक को जब रिड्यूस करके आध्यात्म पे ले जाओगे तो वह आध्यात्म वह सामर्थ्य तक, शक्ति तक पहुंच जाएगा। और जब आपको आदिदैव में देखना चाहोगे तो वह स्वर्ग में बैठे हुए इंद्र के रूप में तुमको देखना पड़ेगा। ये भारतवर्ष की सामान्य प्रक्रिया है। या लिए देवतावाद को समझने के लिए कमेंट देने से पहले अपने अंदर डेप्थ पैदा करियो, इतनी आंतें मजबूत बनाइयो कि वो लोहे और लकड़ी को पचा दे। एक फ्रांस से एक लेडी पढ़ने आई थी मेरे पास, पहले बहुत विदेशी आते पढ़ने मेरे पास, तो वाकई संग जो एक इंटरप्रीटर आए, तो क्योंकि वो इंग्लिश जानती नहीं थी और मुझको फ्रेंच लैंग्वेज के कुछ एक शब्द मैं समझ पाऊं, बाकी नहीं समझ पाऊं। तो वो यहाँ को वो भी अमेरिकन था, तो लेकिन ब्रिज में बहुत दिन से रहते तो, अब तो चलो गए, मर गए वो। तो वो ब्रिज भाषा बहुत अच्छा समझते हो। तो वो मेरे पास आया और मैंने कही कि यह लेडी को आपके पास ये पुराण पे रिसर्च कर रही है या को आपसे पढ़ना है। तो मैंने अपने ब्रजभाषा में कही, बिल्कुल शुद्ध ब्रजभाषा में, कि या बम्मोते कह के अपने फेफड़ान ने मजबूत करके आवे, ऐसे पुराण ना पढ़ी जाए। यह महामाया ते कह के पधार जाते, पहले इतने फेफड़ा तो मजबूत कर कि जब तू शिखर पे पहुंचे तब वहां तेरी थिन एयर के कारण तेरे फेफड़ा यह नहीं होए और तेरी सांस नहीं रुके। मजाक नहीं है वो, वहां एवरेस्ट के चीज वहां पे पहुंच जानो शिखर बिंदु पे और सांस लेते रहनो, ये मजाक नहीं है। या के लिए पूरी अपन को तैयारी करनी पड़े। तो मैंने वह कही कि पहले या कि फेफड़ा मजबूत करवाए तब ये पुराण समझेगी, का खाक समझेगी पुराण। ये मैं कहना ये चाह रहे हूं, ये प्रसंग कह के कि हे देवतावाद या आध्यात्मिक आदिदैविक या आदिभौतिक कोई बात पे कमेंट देने से पहले हमको अपने अंदर की डेप्थ इतनी बढ़ानी चाहिए कि हम इन सब्जेक्ट पे कुछ कह सकें। ये इतने रियलिस्टिक हैं, ये चर्चा बहुत दिन तक चल सके,
2-4 दिन आध्यात्मवाद पे ही चर्चा चल सके, लेकिन मेरा पर्पस जो होता है वो मैं समझा चुका हूँ। तो आध्यात्मिक, और मैंने ये जो दिशा समझाने की पकड़ी है, या में भी समझ लीजिए, मैंने ये स्तर अपने विद्यार्थी के को पकड़े है। मैंने वाकू कोई शास्त्र